Hello students, good morning. Today in this video I am going to start the next chapter number 6, Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? Microsoft Excel is one of the most popular spreadsheet software. It is a spreadsheet software. It is widely used to perform the mathematical calculation. The data is spread in the tabular form consisting of rows and columns. It provides inbuilt features such as formula, functions, data analysis tool, and make it easier to work with a large amount of data. It means माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो भी डेटा इसमें बनाया जाता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है, मतलब रोज़ और कॉलम में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के फीचर्स होते हैं कुछ, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं, इसका इन्वायरमेंट क्या है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। फीचर ऑफ एक्सेल्स: फॉर्मूला आर मेनली यूज टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. Formatting feature improve the appearance of the data. In the Excel, formatting features are there. By this we can change or we can enhance the quality of our data. The data is automatic recalculated in the entire worksheet if change is made in the single cell. It means whenever we change any value, then that value affect to the entire worksheet also. The data can be quickly searched and replaced. It means हम डेटा को इसमें ऑटोमेटिक या क्विकली सर्च कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं. ऑटोफिल फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. इट इज़ यूज टू एंटर द डेटा इन द सीरीज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. द डाटा कैन बी व्यूज इन द ग्राफिकल फॉर्म सच एज चार्ट. इट मीन्स हम अपने डेटा को एक्सेल के एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, so let's start Microsoft Excel. How we can start the Microsoft Excel? First of all, click on the start button, all program, Microsoft Office. Microsoft Office is a package. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, these are the part of Microsoft Office. So click on the Microsoft Excel. This is the Microsoft Excel. Fine. This way you can start the Microsoft Excel. Now in this Excel, two things are there: worksheet and workbook. Whenever you are clicking on the start menu, let's take a new file, click on the new. Here it is blank workbook. यहाँ पे क्या लिखा रहा है? ब्लैंक वर्कबुक. और क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी. क्रिएट. अब हमारी वर्कबुक कौन सी है? 2. और वर्कबुक में हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीटें मिल रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3. दिस इज द वर्कबुक 2, and we have 3 sheets: sheet 1, sheet 2, sheet 3. What is the difference between the workbook and worksheet? The Excel window that appear on the screen is called a workbook. Okay, it is assigned a default name, that is book 1, book 2. New file we have inserted, that's why here book 2 is there. The workbook is like a notebook which consists of number of pages. Worksheet in the workbook is like a pages of the book. मतलब वर्कबुक जो होती है वो हमारी एक नोटबुक की तरह है, और वर्कशीट और उसके अंदर जो पेजेस होते हैं उसकी तरह होती है. तो वर्कशीट इज़ ए ग्रिड लाइन एरिया. यू कैन सी ग्रिड लाइन एरिया. rows and columns are there where you can enter and work with the data. By default, the Excel workbook display the 3 worksheet at the bottom, that is sheet 1, sheet 2, sheet 3. Okay, so
and a worksheet consists of 1048576 rows and 16384 columns. Columns are represented by the alphabet on the top. Here it is, alphabets. Okay, and row have row have number on the left side of the worksheet. रो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? नंबर से. और कॉलम किससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं? हमारे अल्फ़ाबेट से. A B C D these are the columns and 1 2 3 ये क्या है? ये रोज. एंड सिंगल, ये सिंगल चीज़, ये बॉक्स क्या हुआ? ये हुआ सेल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द component of worksheet. Now cell, what is cell? A cell is an intersection of rows and column in a worksheet. See, रो क्या है? जो कॉलम और रोज को इंटरसेक्ट करे वो होता है सेल. नेक्स्ट इज एक्टिव सेल. व्हेन यू क्लिक ऑन ए सेल, ए थिन ब्लैंक बॉर्डर फॉर्म ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेल. इट इंडिकेट दैट करंट सेल इज एक्टिव. मतलब जो हमने जिस पे, मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ क्लिक करने पर इसकी आउटलाइन पर एक थिंक सेल, ब्लैक लाइन बन गई, बॉर्डर बन गया. तो ये क्या हुआ? ये एक्टिव सेल हुआ. सेल तो है ही, बट नाउ इट इज़ एक्टिव. जब भी हम इसमें कुछ लिखेंगे, कुछ भी राइट करूँगा कीबोर्ड से, तो इसके अंदर लिखा जाएगा. ये एक्टिव सेल है. रेंज क्या होती है? ए रेंज इज ए ग्रुप ऑफ कंटिन्यूस सेल which form the shape of a rectangle. It can be as small of a single cell or big of the entire worksheet also. मतलब कि जो हमने एक सेल से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट किया तो ये क्या बन जाएगा? हमारा रेंज. ये देखो, ये क्या बन गई? रेंज. सिंगल सेल को सेल बोलते हैं, एक्टिव सेल भी वही होता है. रेंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड रेंज. ओके बॉयज, सो दीज आर द इन्वायरमेंट्स ऑफ वर्कशीट. नेम बॉक्स क्या होगा? नेम बॉक्स इज इंडिकेट और लोकेटेड जस्ट अबव द कॉलम हेडिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर विंडो. दिस एरिया डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सेल. यू कैन सी हियर. व्हेन मैं यहाँ पे जैसे क्लिक किया, डी वाले कॉलम पर मैंने क्लिक किया, तो नेम बॉक्स में ध्यान दें आप, क्या आ रहा है? D2. D2 मतलब पहले तो कॉलम का नाम आएगा, फिर रो का नाम आएगा. कॉलम का नाम क्या है? D. रो का 2. तो इस सेल का नाम क्या रहेगा? D2. तो नेम बॉक्स क्या शो करता है? करंट सेल का एड्रेस. नेक्स्ट इज फॉर्मूला बार. ये होता है फॉर्मूला बार. देखो हाईलाइट्स हो रहे हैं उसमें. द फॉर्मूला बार इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द नेम बॉक्स. राइट में है. दिस बार शो द डेटा एंड फॉर्मूला दैट यू एंटर इन एन एक्टिव सेल. जब भी आप कोई फॉर्मूला या फिर कोई भी वैल्यू एंटर करोगे तो वो फॉर्मूला बार में शो होगी. नेक्स्ट इज स्टेटस बार. द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ योर एक्सेल विंडो. इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट सिलेक्शन. It include the name of currently selected command or current activity. It also display the warning message. See, bottom of the window जहाँ पे आपकी शीट शो होती है वहाँ पर ये चीज़, जहाँ पे रेडी लिखा हुआ है, ये चीज़ क्या है? ये स्टेटस बार है. यहाँ पे आपको शो करेगा कोई भी इंफॉर्मेशन रहेगी जो भी. जैसे कि अभी हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी, जब हम वैल्यू टाइप करेंगे तो आपको वैल्यू भी काउंट करके दिखा देगा, उसका सम भी कर देगा. वैल्यूज़ कितनी है, उनका सम कितना है, बिना फॉर्मूला अप्लाई किए वो स्टेटस बार में भी शो हो सकता है. सो ये थे इन्वायरमेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इन्वायरमेंट्स. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स क्या है, नेम बॉक्स, रोज़, कॉलम्स. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, कि इसमें किस किस तरह से हम डेटा को एंटर करवा सकते हैं. दोबारा रिपीट करता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली हम यूज़ किस लिए करते हैं. ये टैबुलर फॉर्म में डेटा शीट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. इसके बहुत सारे फीचर्स हैं. इसमें हम डेटा एंटर तो करवाते हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेटा की. और डेटा की कैलकुलेशन
इसमें क्यों की जाती है, इसमें अगर हम एक सेल में चेंज करते हैं, सिंगल सेल में चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी इंटायर वर्कशीट में चेंज हो सकता है। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है, और कोई भी डेटा एंटर करने के लिए जो टेबुलर फॉर्म में हो। टेबुलर फॉर्म इट मीन्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, ये इनबिल्ट फीचर्स भी है इसमें, जैसे फार्मूला है, फंक्शन है, डेटा एनालिसिस टूल है, जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे वर्क करने के लिए हमें आसान बनाता है। आगे आगे हम और भी देखेंगे इसके फीचर्स। बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, बहुत पावरफुल टूल है और यूज़फुल टूल है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डेटा करेंगे। थैंक यू।